हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट क्लास। आज के वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में इंडिया की डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर को लिया जाएगा। अगर आप भी अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और हाँ, अपना क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट आज के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। आज के वीडियो में मैंने एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के 2020 के डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पेपर को लिया है, जो कि सीएस और आईटी दोनों ही ब्रांच में पूछा गया है। तो इसके फर्स्ट पार्ट ए को अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हमें बहुत ही ध्यान से लिखना होता है, क्योंकि हमें इसमें आंसर बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और एक पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बहुत डिटेल में उस आंसर को पढ़ सके। सो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना होता है, जैसे कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसकी तुरंत आंसर पे नज़र पड़े और मार्क्स आपको दे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो व्हाट आर दीज टू अप्रोच? Actually, top down and bottom up are the two strategies of information processing, and these strategies are used in variety of fields also, such as in management, psychology, manufacturing, as well as in the computer science. Okay, so in computer science, the top down approach is based on planning and complete understanding of the system. Okay, whereas the bottom up approach works in the exact opposite way. Okay, we begin by taking small components and assembling them into the desired system. Okay, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि टॉप डाउन प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, दैट इज अ ब्रेकिंग अ बिगर प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर चंक्स और स्मॉलर मॉड्यूल्स. Okay, whereas the bottom up programming focus on the integration of the smaller modules. On the screen you can see the difference between the two approach, that is the bottom up model and the top down model. So the first one is the focus. So in the bottom up model, the focus is on identifying and resolving smallest problems and then integrating them in together to solve the bigger problem. Okay, in top down model, the focus is on the breaking the bigger problem into smaller one and then repeat the process with each problem. Language, the bottom up model is mainly used by the languages such as C++, Java. Means object oriented programming languages जो हैं वो बॉटम अप मॉडल या बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करती हैं किसी भी सिस्टम के सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए, जबकि टॉप डाउन मॉडल जो है दैट इज फॉलोड बाय द स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, फोर्ट्रॉन. नेक्स्ट पॉइंट है रिडंडेंसी. Bottom-up model is better suited as it ensures minimum data redundancy and focus is on the reusability. तो यहाँ पे बॉटम अप मॉडल में रिडंडेंसी सबसे कम होती है और हम रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इनकरेज करते हैं, जबकि टॉप डाउन मॉडल has high ratio of redundancy as the size of the project increases. Next is interaction. Bottom up model have high interactivity between various modules. In the top down model, it has a tight coupling issues and low interactivity between the various modules. Approach, bottom up model is based on the composition approach, while the top down model is based on decomposition. But there are further few issues which are required to be addressed by the bottom up model and the top down model. In bottom up model, sometimes it is difficult to identify overall functionality of the system in initial stage. Okay. Similarly, in the top down, it may not be possible to break the whole problem into the smaller set of problems. So these are the two issues which are required to be addressed during the two approach. चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड और इसको एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है. So the frequency count is the number of times the statement is executed in the program. Let us understand the frequency count by the 3 different example. पहले एग्जाम्पल में एक सेगमेंट ए है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट है x इक्वल्स टू x प्लस 2.
तो इसको एग्जीक्यूट करने में सपोज 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। सेगमेंट बी की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर लूप है जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है और उसके अंदर एक स्टेटमेंट है जो कि रिपीट हो रहा है। तो since the loop is running from 1 to n means the statement will be executed for n times. So the complexity of this piece of code would be order of n. Okay. थर्ड सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो लूप्स हैं, j इक्वल्स टू 1 से n तक, फिर x इक्वल्स टू 1 से n तक, और एक स्टेटमेंट x इक्वल्स टू x प्लस 2 रिपीट हो रहा है, दोनों लूप के अंदर है। ओके, सो जो पहला वाला लूप होगा दैट विल बी रनिंग फॉर n times. The second loop is also running for n times. So for every value of j, the second loop will be running for 1 to n. यानी कि हर एक वैल्यू के लिए, हर j की हर एक वैल्यू के लिए x वाला लूप आपका n टाइम्स चलेगा। तो अंदर वाला n, ऊपर वाला n, so it will be running n square times. Okay, means that the statement x equals to x plus 2 will be repeated for n square times. Okay, so the complexity would be order of n square. फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड को मैंने एक दूसरे वीडियो में एक कुछ एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड को समझ सकते हैं और उस पर डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स भी आप उसको देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में डिफरेंस पूछा गया है। सिंगली लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है, दूसरा एड्रेस पार्ट होता है। सो डेटा पार्ट इज यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू एंड द लिंक पार्ट or the address part is basically used for storing the address value. Okay, so here the head node is pointed by the head pointer. So here the head is, the address of the head node is 100 and the next node is at the location 200. So this address is specified onto this link part of the first node, and the second node is pointing to the next node which is located at the 300. Fine, so you can see that the address of the particular node is specified in the link part of the node. Okay, और लास्ट नोड में हमारा जो है नल होगा because there is no further nodes are connected, so the link part of the last node would be null. So डबली लिंक लिस्ट के नोड में तीन पार्ट्स होंगे, पहला होगा प्रीवियस पॉइंटर को होल्ड करने के लिए, दूसरा पार्ट जो है डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होगा, और तीसरा पार्ट नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर करने के लिए यूज होगा। ओके, सो हियर द फर्स्ट नोड यू कैन सी हियर that it contains the previous pointer as null value, and in the info value it is having 10, and in the next pointer it is having 2000. तो पहले नोड का प्रीवियस पॉइंटर नल क्यों, बिकॉज इससे पहले कोई भी नोड नहीं है तो इसका प्रीवियस पॉइंटर नल है। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो लास्ट नोड है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, इसका नेक्स्ट पॉइंटर वो नल है बिकॉज इसके आगे कोई नोड नहीं कनेक्टेड है, जबकि इसके बैक पॉइंटर में वैल्यू 2000 स्टोर है जो कि एड्रेस है सेकेंड वाले नोड का। सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में डिफरेंस देख सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो नंबर ऑफ फील्ड्स का ही है, सिंगली लिंक लिस्ट में 2 फील्ड होती हैं और डबली लिंक लिस्ट में 3 फील्ड होती हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। फिर बात करते हैं ट्रैवर्सल मेथड की। तो सिंगली लिंक लिस्ट ओनली वन डायरेक्शन में ट्रैवर्स होती है क्योंकि हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, जबकि डबली लिंक लिस्ट दोनों डायरेक्शन में हम उसको ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं बिकॉज एवरी नोड हैज गॉट द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड एज वेल एज द नेक्स्ट नोड। अगर हम मेमोरी स्पेस की बात करें तो डेफिनेटली सिंगली लिंक लिस्ट कम मेमोरी स्पेस लेगा बिकॉज it is required to store only the 2 piece of information, while the doubly linked list will be taking more space because it is having 3 parts. अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन की सिंगली लिंक लिस्ट में, so that will be order of n, और यहाँ पर भी हमारा जो है ऑर्डर ऑफ n ही होगा। सिंगली लिंक लिस्ट आर बेसिकली
preferred in the execution of the stacks data structures, while the doubly linked lists are preferred in case of the binary tree as well as the heaps. फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन एरे का एल्गोरिथम लिखना है या सूडो कोड लिखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हमने एरे लिया, सपोज इट्स नेम इज एल ए, it has got number of elements n, and suppose we want to delete the kth element. Okay, item is the variable which holds the value or the element to be deleted. Fine. So in the first step we have just assigned the value of the element from the array onto the item variable so that it can be further be used. After that what we'll do, आपको याद होगा कि डिलीशन एल्गोरिथम में क्या होता है, जब भी हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हम ऊपर की तरफ एक पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो शिफ्टिंग कैन बी डन बाय दिस फॉर लूप स्टेटमेंट, और दैट इज j इक्वल्स टू k टू n माइनस 1, LAJ इक्वल्स टू LAJ प्लस 1। यहाँ पे LA हमारा एक एरे का नाम है, LA स्टैंड्स फॉर लीनियर एरे। फाइन। सो LAJ इक्वल्स टू LAJ प्लस 1, मतलब j प्लस 1 वाला एलिमेंट j में डाला है, यानी कि नेक्स्ट वाला एलिमेंट अपने से ऊपर की तरफ हमें शिफ्ट करना है। फाइन। और लास्ट में n की वैल्यू हमारी एक डिक्रीमेंट हो जाएगी बिकॉज वी हैव जस्ट डिलीटेड वन एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एरे। सो इफ द अर्लियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर n, so now it become after deletion n equals to n minus 1. Okay, तो ये था हमारा पार्ट ए का एनालिसिस।